Hello student, today we are discuss about social studies room and laboratory, सामाजिक विज्ञान कक्षा का कक्ष या फिर प्रयोगशाला के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं. दिस वीडियो फॉर बियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट टीचिंग ऑफ सोशल साइंस. कोड इज़ 1 to 8. Let's start. सोशल स्टडीज़ रूम एंड लेबोरेटरी. सोशल स्टडीज़ रूम नाम से ही पता चल रहा है. आज से पहले हम जब भी टीचिंग लेबोरेटरी की बात आती थी, लैब्स की बात आती थी, तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही लैब के बारे में सबसे ज़्यादा साइंस लैब के बारे में ज़्यादा देखने को मिलता है. फिजिकल जो है होती हैं, फिज़िक्स लैब हैं आपकी, केमिस्ट्री लैब है, बायोलॉजी, बॉटनी या जूलॉजी, सबको पता है. हम सबसे पहले जो सेपरेट रूम लैब्स होती थी हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में, तो वो सबसे पहले हम साइंस ही सब्जेक्ट के बारे में देखते थे. लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस के लिए ही प्रयोगशालाएं या लेबोरेटरी बनाई जा सकती हैं. आप डिफरेंट लैंग्वेज रूम भी देख सकते हो आज के टाइम पर, और अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी लेबोरेटरी फ्रेम की जा रही हैं. लेट्स स्टार्ट. Just as we require separate laboratories for teaching science like physical, chemistry, biology, art and craft similarity, we need a separate room for the teaching of social studies. The social studies teacher has to make use of various teaching aids like maps, models, chart, poster, picture, cartoons, globe, projector, film strip, etc. to keep them in a safe custody. Listen carefully. To keep them in a safe custody and for easily availability, it is necessary to have a separate room for social studies. This special room is known as Social Studies Laboratory, which creates the congenial environment and stimulates learning. If a separate laboratory is needed for science and handcraft, its need is no less in the subject of social studies. There are certain schools which purchase the equipment for social studies but lock that equipment in some store and do not make use of them. The equipment becomes useless. If there is a separate social studies room, there are far chances of making use of this material. जो सेफ्टी के साथ हम कहीं पर ख़रीद तो लाते हैं सामान को, लेकिन किसी एक स्टोर रूम में कैद हो जाते हैं, एक लॉकर में कैद हो जाते हैं, एक टीचर्स की अलमीरा में कैद हो जाते हैं उनके सेल्फ में. तो इससे क्या है, हम लेबोरेटरी का रूम का नाम नहीं दे सकते उस चीज़ को, और ना ही वहाँ पर वो उतना वर्क करती हैं वो चीज़ें. इसीलिए जो सेपरेट कस्टडी में रखे गए इक्विपमेंट, जो सेपरेट रखे गए हैं सारे इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट, उस जगह को हम लेबोरेटरी कहते हैं. स्टडीज लेबोरेटरी में बी डिफाइंड एज रूम इन विच आर कंटेंट of all written audio and visual material for social study instruction. The physical arrangement of a classroom is such that books, cases, magazine, paper holder, almirah, newspaper and other equipment surround the room. सीधी सी बात है, एक ऐसा रूम जिसमें सोशल साइंस से रिलेटेड सामान रखा जाए, इक्विपमेंट रखे जाएं, बुक्स हो सकती हैं, मैगज़ीन हो सकते हैं, न्यूज़पेपर हो सकते हैं, आपके मैप हो सकते हैं, डायग्राम हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकते हैं, मॉडल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. लेकिन जब उन्हें हम एक पर्टिकुलर रूम में असाइन करके रख दिया जाता है, वो एक लेबोरेटरी का नाम उसको दे दिया जाता है, एक लेबोरेटरी बन जाती है. It seems to have grown of the directly study, explain primary in phases of equipment and its use. The teacher and the student to both perform certain experiment based on scientific principle to make certain concept of social studies clear. The students either in visual or in a group make use of the material for solving student different problem in social studies. Practical work in social studies constitute the laboratory work. The data collected in the field or from a farm or from the statistical reports are transformed into map and diagram in the laboratory
breaking news. After the field of germination, the need of laboratory is felt to give concentrate shape of the ideas. जब तक हम किसी चीज़ को फ्रेम करके एक ढंग से नहीं लगाते, अरेंज नहीं करते हैं, तब तक कॉन्सेप्ट सिर्फ आइडियाज़ ही रहते हैं, हम उनको सोचते रहते हैं, कई चीज़ें बिखरी हुई मिलती हैं। साइन जब कोई पर्टिकुलर एक जगह साइन कर दी जाती है, तब स्टूडेंट और टीचर उनकी जो नॉलेज है वो इन्हांस ही नहीं होती, बल्कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच और कैसे उन इक्विपमेंट को यूज़ करना है वो सब चीज़ें सीख जाते हैं। Definition of laboratory method, view of beginning and beginning. The form of laboratory method is different in different school. Generally, the duty of the teacher in the method is to assign the task and impact their work. Teacher works in the middle of the student, rectifies their errors, encourages and suggested them time to time. The teacher can ask the student to clarify some indefinite or unclear points. Thus, the student complete the task by themselves under the guidance of the teacher. टीचर की गाइडेंस में लेबोरेटरी के इक्विपमेंट को यूज कर जब स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, क्रिटिकल थिंकिंग इन्हांस हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप हो जाता है, तो बच्चे में जो अनक्लियर पॉइंट थे, इनडेफिनेट पॉइंट थे, वो क्लियर होने स्टार्ट हो जाते हैं। जो चीज़ें कभी लेक्चर मेथड से समझ में नहीं आती, वो चीज़ों को करके, देख कर, लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी से हम अच्छे से करा सकते हैं। मेरिट्स ऑफ ए लेबोरेटरी मेथड, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं हम अपनी टीचिंग को, बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, हर कॉन्सेप्ट हमारे सामने होते हैं, इंडिपेंडेंट वर्क हो जाता है, टीचर सिर्फ गाइड का काम करता है, बच्चे को सब पता होता है कि सेल्फ में कौन सी बुक मिलेंगी, मैप्स कहाँ हैं। अगर हम बच्चे को टाइम टू टाइम वीक में एक बार, महीने में 2-3 बार अगर हम वहाँ पर ले जाते हैं, तो बच्चे को उन इक्विपमेंट को यूज़ करना क्या उसके डीमेरिट और मेरिट होते हैं और उनकी डिफ़िकल्टीज़ पता चल जाती हैं सोशल साइंस में। सेल्फ रिलायंस एंड कोऑपरेशन, सहयोगी प्रणाली के साथ साथ आत्मचिंतन करना वहाँ पर बच्चा सीख जाता है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ पर उत्तरदायित्व की भावना बच्चे में अपने आप से डेवलप होने लग जाती हैं। यूज़ ऑफ टूल्स, कैसे टूल्स को, कैसे यंत्रों को इस्तेमाल करना है, कैसे इक्विपमेंट को यूज़ करना है, उपकरण कैसे यूज़ किए जाते हैं, कैसे मैप की फाइंडिंग की जाती है, कैसे डायग्राम फ्रेम किए जाते हैं, हर वो चीज़ लेबोरेटरी को अगर बच्चा यूज़ करता है एक टीचर की गाइडेंस में, तो बच्चे में कहीं ना कहीं है जो टेक्नोलॉजी और टूल्स है उसको यूज़ करना बहुत अच्छे से सीख सकता है। एप्लीकेशन जो है बच्चे की वो बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाती है किसी भी कॉन्सेप्ट को। डीमेरिट क्या हो सकते हैं? सब एक्सटेंसिव हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, हर टीचर हर चीज़ को बार बार लेबोरेटरी में ले जाकर नहीं समझा सकते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी फॉर एफिशिएंट टीचर, हाँ बहुत अच्छे टीचर, ट्रेन टीचर, स्किल टीचर नहीं मिल पाते हैं जो लेबोरेटरी को अच्छे से फ्रेम करे, ऑर्गेनाइज करे, उन्हें सक्सेसफुल बना सके। नॉट टिपिकल सोशल स्टडीज़ वर्क, नॉट सूटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स, हर टॉपिक को हम सोशल साइंस के हर जो मुख्य बिंदु है करिकुलम में, उनको हम लेबोरेटरी मेथड में ले जाकर हर बार नहीं समझा सकते हैं। नॉट प्रैक्टिकेबल इन लार्ज क्लासेस, प्रैक्टिस हो नहीं सकती बड़ी क्लास में, हम प्रैक्टिकल वे में यथार्थ रूप में हम कैपेबल नहीं कर पाते हैं। नीड थ्रू प्लानिंग एंड सुपरविज़न, बिल्कुल बहुत बड़ी प्लानिंग की और सुपरविज़न की ज़रूरत होती है इसके लिए। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो पूरी लेबोरेटरी वहाँ पर उनका जो ऑब्जेक्टिव हमने जो एम फ्रेम किया था वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाती हैं। अगर उसे कोई संचालन करने वाला, ऑर्गेनाइज करने वाला, प्लानिंग करने वाला, एग्जीक्यूट करने वाला अच्छा नहीं होता है, तो ये लेबोरेटरी के डीमेरिट्स भी कहला सकती हैं। इन स्पाइट ऑफ सर्टेन लिमिटेशन, this method is very useful in social studies as it is very interesting, joyful, psychological and develops clear thinking, understanding